नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। आप सबको वंदे मातरम। मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ और हम हैं नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ। गुजरात के चुनाव की घोषणा हो गई है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर वोटिंग है और 8 दिसंबर को रिजल्ट है। 8 दिसंबर को परिणाम भी आ जाएंगे बाहर। मतलब वक्त बिल्कुल नहीं है। नवंबर का महीना चल रहा है, आज 3 नवंबर है। यानी किसी को अगर कैंपेन करना है, सिर्फ 25 दिन का कैंपेन बचा है। Exactly, sir. Within 25 days, बिल्कुल। you have to have your candidates list ready, you have to have everything ready, you have to have your entire campaign ready, you have to know which village, which taluka, which zilla, which district Exactly. is voting for you, which is not, which neighborhood do you have to really work hard in, and Who's so your on, voter? and so on and so forth. And the BJP has a head start, so does the Aam Aadmi Party. The only party which is missing is the Congress Party. And very sadly, from across the border, the violence just doesn't stop, does it? It's a rogue country, sir. You can't talk peace and you can't read the Bhagavad Gita to a rogue. Impossible. Or you can't read the Quran to a rogue. Impossible. They've killed off so many of their prime Yes. ministers. They've killed off so many of their prime ministers. This jungle law. And so many prime minister hopefuls, starting with Liaquat Ali Khan way back in 1958-59. And then later on, Zulfikar Ali Bhutto was hanged. General Ziaul Haq was blown up in a C-130 Hercules aircraft. And Benazir Bhutto also assassinated. And now an assassination attempt on Imran Khan. But funnily enough, the man had an AK-47. AK-47 उनके पास थी और इमरान खान साहब को सिर्फ टांग में, मतलब पैर में गोली लगी है। पैर में गोली लगी है और एक कोई बाईस्टैंडर है, शायद उनका इंतकाल हो गया। गरीब लोगों के जान इसमें जाते हैं। नेता लोग अपने खेल खेलते हैं। I find it very strange. बिल्कुल। But it is sad what has happened. It is sad. It is really and truly sad. It is sad. Any attempt on anybody's life. Anybody's is not life. nice. And a common man dying for this, whatever the political equations of one party or the other. But when a common man dies, it's a matter of concern. Yes, which is absolutely. He's got nothing to do with this. Correct. He's just one among the whole procession. Gee, and this long march business was called by Imran Khan. And Pakistani politicians, by the way, are very influenced by the long march of Mao Zedong's long march, when he took parts of the Communist Party with him, and then finally whittled it down to the core group, all the most loyal group who were there with him, who would help him fight the nationalists of Chiang Kai-shek, and that's how he took over China. Now you've been always telling, even recently you told that all these long marches and all these bra yatras always benefits the leaders. Always benefit the leaders who undertake them. Yes, sir. I hope they benefit Mr. Imran Khan. I'm not sure how. And to glorify sometimes बहुत सारे मसाला उसमें ऐड हो जाता है जी, बहुत सारे नौटंकी उसमें ऐड। लेकिन जैसे इमरान खान साहब बोलते हैं कि अमेरिका जो है शायद मेरे जाने का ही इंतज़ार कर रहा था, इसलिए उन्होंने बहुत कोशिश करी और उसके बाद मुझे बाहर निकाला अमेरिका ने। क्योंकि इमरान खान साहब के जाने के बाद एकदम फ़ौरन FATF से पाकिस्तान बाहर हो गया। इमरान खान के जाने के बाद F-16 की मेंटेनेंस के लिए और स्पेयर पार्ट्स के लिए जो पैसे चाहिए थे, $450 मिलियन, वो भी सैंक्शन हो गए। चाइना ने भी कह दिया कि जो $46 बिलियन का आपका CPEC है, हम रिवाइव करने वाले हैं। अमेरिका ने भी कहा है कि that we will provide you another line of credit. So what was really going on? Was everybody waiting for just Mr. Imran Khan to be out of the way? They want to transform Pakistan back into a rogue nation. Yes. And in fact, let us give credit to Imran Khan that he wanted to change Pakistan. Yes, he did. Whatever slogan he said, Naya Pakistan, or whatever. He was the first prime minister who said that we are not guns on hire, or That's guns right. for hire. That's right. We are not going to be your guns to fire at somebody, to fire Russia, or fire Afghanistan, or create problems here or there. We are not going to be it. Till now it was, he wanted a policy change. He was taking about turn from what Pakistan was. He said Pakistan for Pakistanis. Yes, exactly. That's what he said. And he wanted to transform them. He said, what are we?
instead of making us a grooming a place for terrorism. For mercenaries. For mercenaries. We are not mercenaries. Let us transform our young people like how India is. That's right. Let us make the IT, let information technology come, let trade and commerce come, let cultural things take place. He was a guy who wanted changes, actually. You know what? Usually what has happened is, in Pakistan it has been observed, whichever Prime Minister or whosoever has been in power, whosoever has tried to improve relations with India or has praised India has always been thrown out or murdered. One of the two. But he tried his best to transform Pakistan in a way. Yes, he did. He wanted to tell people that, look, this is not what you should be. This is what you should be. That's right. Transform yourself. Transform. Let trade and commerce flourish. Let us be known as a hub of manufacturing, of production, of all these kinds of activities that grooms or aids commerce, rather than being just a place for breeding terrorism. That's right. We shouldn't earn our money by terrorism, which Musharraf used to pride. He says, we groom terrorists, we make terrorist leaders, and then we bump them down and earn money. And then that is the way we make huge wealth. And then we collect a bounty on them to kill them. Yes, he says, we groom, we train, we do everything that can. We make them leaders, we make them big, hardened terrorists, and then there's a bounty on their name, and then we bump them off and earn the bounty. That's and right. how much money have we earned? I mean, in his book, In the Line of Fire, he praises himself to all. That's right. Seventh heaven, saying, look what we have done, we have transformed. To about turn what Imran Khan said. Imran Khan said, trade, commerce, peace, love, prosperity. That's economic development. Social development. Equality, justice. And the people don't want that. People don't want that. People don't want that. They said this is a very, very tedious path. This is an alien concept. It's an alien concept. It works for India, doesn't work for us. We are bomb banao, firing karo, ye karo, terrorism badao. First class, bilkul. That is what we are, and easy money. That's so effectively, the Pakistanis are sending a message across to the rest of the world. Forget about us. You'll remember us only when you're in trouble. Whenever you are being attacked by terrorists, do remember our hand will be there somewhere. We are there. That's what it is. It's made in Pakistan. मतलब कहने का मतलब ये हुआ made in Pakistan. जैसे कोई भी आतंकवादी हमला कहीं पर, जैसे प्रदीप जी ने अभी कहा, कोई भी आतंकवादी का हमला कहीं पर दुनिया के किसी कोने में भी होता है, उस पे मेड इन पाकिस्तान का ठप्पा लगा होना चाहिए, और अगर नहीं लगा है तो हम लगाएंगे. और कहने का मतलब ये है, मोदी जी यहाँ का कहते हैं कि we want to be the manufacturing hub. यहाँ से मेक इन इंडिया, यहाँ से जो भी वस्तु बनाएंगे उसमें मेक इन इंडिया का छाप लगेगा. जैसे मोदी जी ने पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान. Any terrorist attack, as you said, across the world, has to be made in Pakistan. It has to be made in Pakistan stamp. जैसे मोदी जी ने कहा, वही अपनी अमेरिका में कोई सभा थी, इधर कनाडा में थी, मोदी जी ने कहा कि शायद ही कोई डायमंड ऐसा होगा जो कहीं पर भी दुनिया में किसी ने पहना है जिस पर किसी हिंदुस्तानी का हाथ ना लगा. Exactly, sir. There is not a single diamond anywhere in the world which has not passed through Indian hands. Exactly. And there is hardly an IT company in the world, information technology company in the world, which does not have an Indian for a CEO and does not have a core group of engineers or software developers who are not Indians. And that's the difference. And Shahbaz Sharif will say, there is no terrorist attack in the place anywhere in the world unless you have the Make in Pakistan stamp on it. And if there is, do let us know. We'll reach. We'll reach there. मतलब ये अजीब व गरीब मसला है. हमारे पड़ोसी देश को मतलब कुछ बनना ही नहीं है, उनको आतंकवादी देश ही रहना है. That's what Hillary Clinton told, that you have snakes in your backyard. And don't expect them only to bite your neighbor. Bite you, it's good. Now they don't want to remove the snakes. Now they will kill the snakes. They want, and it has become, it has diversified monstrous proportions. Yes. The snakes have become, snakes are everywhere. That's right. There's nothing you can do. Now it's become Hydra-headed. Hydra-headed. And it is being fed by the same United States of America. Exactly. And they're happy to do it. And they're very happy to do it because it suits them. Now the point is fantastic. Now, but the point is, as far as we are concerned, we have deeper concerns. हिंदुस्तान में बहुत गंभीर मसले हैं साहब. अभी गुजरात में चुनाव मतलब 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को है, उसके बाद 8 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा. उसके पहले हिमाचल प्रदेश में चुनाव है.
अब मेरा ये कहना है, और उसके बाद अगले साल प्रदीप जी yes. कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, इन तीनों जगह पर चुनाव होने वाला है। Exactly. कहने का मतलब ये हुआ, द लीड अप टू 2024 हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। 2024 का जो लीडअप है वो अभी से शुरू हो गया है। लेकिन अजीबोगरीब मसला ये है कि गुजरात में 1 महीने के बाद चुनाव है, 1 महीना बल्कि 25-26 दिन के बाद चुनाव है, क्योंकि आज 3 नवंबर है। 28 नवंबर से you will not be able to campaign for the constituencies going to the polls on the 1st of December. Exactly. मेरा ये कहना है कि कांग्रेस कहाँ है गुजरात में? गुजरात में कांग्रेस is the only party which is missing. Exactly. ये क्या हो क्या रहा है ये? There's no. While coming, when we sit, just before sitting, I was just checking the Twitter of Mallikarjun Kharge. जी. I think just late evening he has come out with some resolutions for Gujarat. Like the Udaipur resolution. Udaipur resolution. But it's all a copybook from Aam Aadmi Party. जी. Bijli. जी. School. बिजली, स्कूल, अस्पताल. Health. Yes. Transport. LPG cylinder. Transport. Trade and commerce. Transport. दूध. कटौती 5 रुपया सरकार वापस भर देगी for so cooperatives. So they have late night. But as you say, you can't. A 150-year-old party starting the most last to have its strategy for Gujarat is absolutely, because you know, it's not a small. If you don't have a think tank that understands the Gujarat election is on and we need to concentrate on Gujarat, nothing happens. What is the strategy of the Congress party? And Mr. Mallikarjun Kharge, I think only on Twitter he has started the entire campaign, and the Twitter also he's talked about the Morbi tragedy. He said contractors को गलत चुना गया है। और मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कांग्रेस की जो कैंपेन है वो सड़क पे जाने के बजाय सिर्फ ट्विटर पर रहेगी। ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यहाँ पर रहेगी। In direct contrast to what Mr. Rahul Gandhi himself is doing. राहुल गांधी साहब की पदयात्रा है, बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है। लेकिन बहुत अच्छा होता कि अगर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा अभी गुजरात में चल रही होती। गुजरात यात्रा अगर करते हैं जी, I think there you got a presence. Gujarat Congress has a presence. जी, you all enlighten all your people out there. अपने जो वोट बैंक है प्रदीप जी, सिर्फ जगाने की जरूरत है जी। और उनकी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, it's a fantastic thing. People are joining together. I hope they do it now. If it was time, if you could fly out from Karnataka straight to Gujarat and spend 10 days in Gujarat, it will change Congress's fortunes. Why 10 days? 20 days? 20 days. आपके पास कितने? 25 दिन हैं आपके पास? Yes, exactly. तो 25 दिन गुजरात में रहिए। होना चाहिए सर, because that is where the elections are going to be held. Now आप कहीं और घूम रहे, ठीक है, कर्नाटका also in some point of time elections will be there. But that's next year. Yes, that's अगले साल है. But you can fly down here and spend, as you said, at least 20-25 days. Unless a deal has been arrived at with the BJP. But उनका भी मुझे तो ऐसा लग रहा है प्रदीप जी, मुझको तो ऐसा लग रहा है क्योंकि आप देखिए राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी, रॉबर्ट वाड्रा जी, यस, रॉबर्ट वाड्रा का नाम मैं जान के ले रहा हूँ। कभी भी आप देखेंगे राहुल गांधी जी अटैक जरूर करते हैं नरेंद्र मोदी जी पर, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर जाकर कुछ नहीं करते। ही नेवर गोज इन कैंपेन्स ओवर देयर। कभी नहीं गए, बिल्कुल। काशी में कभी नहीं गए, यस, गुजरात में कभी नहीं गए, यस। और गुजरात में जब भी गए हैं बहुत पहले गए, सोमनाथ मंदिर में गए, दर्शन किए, वापस आ गए। लेकिन गुजरात के अंदर जो प्रॉपर इलेक्शन कैंपेन होनी चाहिए वो आज तक कभी राहुल गांधी जी ने नहीं करी है। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संकेत तो नहीं मिल गया है कि भाई देख लो आपके जीजा जी के जो केस पड़े हैं, नहीं तो फिर रिवाइव करते हैं उनको? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है? I mean, such a big party, you need to have a core committee that knows that which place, कौन से तारीख में कौन जहाँ पर इलेक्शंस हो सकते हैं जी। और आपका तैयारी उसमें चालू होना चाहिए, आपका कैंपेन चालू होना चाहिए, डे टू डे पूरे वार्ड लेवल तक कौन कौन से इश्यूज है और कौन कौन से इश्यूज लोगों के आप एड्रेस करेंगे, उस चीज पर आपको irrespective of what you are fighting the leadership, because there were contests within the Congress, the presidential elections. But क्या presidential election के लिए सब भूल जाएंगे? Are you going to forget all the other job as a national party? You got 20% presence all across the country. The second best presence among all political parties the Congress has. After the BJP. And you don't have a system in place that when you're concentrating on one thing, you forgot all the other things. You forget the election of these places. अभी तक आपकी कैंडिडेट लिस्ट रेडी नहीं है। Exactly, that's what I'm saying. आपको ये मालूम नहीं है इश्यूज क्या है आपके पास, कि आपकी कैंपेन क्या है। आपने जैसा अभी आपने बताया
अभी आपने बताया आपके अध्यक्ष जी ने आम आदमी पार्टी की जो कैंपेन है वो कट पेस्ट करके लगा दी। बिल्कुल करके, ये क्या मतलब हुआ? जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिजली 300 यूनिट हम माफ कर देंगे, 3000 स्कूल्स बना देंगे, दूध हम फोकट में दे देंगे, यानी 5 रुपीज हम उसको डिस्काउंट हो जाएगा। तो अलग, जस्ट कॉपी पेस्ट फ्रॉम व्हाट मिस्टर केजरीवाल। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ एक ही सवाल पूछेंगे, कांग्रेस फला जगह पर पावर में थी या है, ठीक है साहब, ये सब आपने किस किस जगह पर इंप्लीमेंट किया बता दीजिए। Exactly. क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास तो दिल्ली का मॉडल है और पंजाब है जहां पर यही चीज वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली आपने क्यों नहीं किया? अरे भाई झारखंड आपके पास है, आपके पास माशाल्लाह छत्तीसगढ़ आपके पास है, अभी भी मध्य प्रदेश था, वहां पर आपने कुछ नहीं किया, और 2.5 साल तक महाराष्ट्र आपके पास था, आपने क्या किया? महाराष्ट्र में और प्रॉब्लम है सर जी। वो जो एमवीए अलायंस रहेगी नहीं रहेगी, नाना पटोले को बोलते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम है, बोले कि एमवीए रहकर भी एमसीए इलेक्शन में शरद पवार, मिलिंद नार्वेकर और बीजेपी साथ में आए जी, तो एमवीए का मतलब क्या हो गया? दुरुस्त बात। अब अगर ये अलायंस होगा कि नहीं होगा, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नेक्स्ट इज द बीएमसी इलेक्शंस इन मुंबई महाराष्ट्र, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? कांग्रेस क्या, कांग्रेस बिकम अ जोक कि आप है अलायंस में और नहीं भी, लोग साथ में हैं और नहीं भी, कोई चुन मुद्दे पे इन लोग जाएंगे और बीजेपी से हाथ जोड़ेंगे और कांग्रेस को छोड़ देंगे बाहर और फिर बोलेंगे हमारा अलायंस है, एमवीए ताकत में है, एमवीए साथ में है, एमवीए की ताकत है। बोले वेयर डू वी लाई, वी आल्सो डोंट नो। लेकिन नाना पटोले साहब की कंप्लेंट असल में ये है, शिकायत उनकी क्या है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार जी, यस, भारतीय जनता पार्टी यानी आशीष शेलार जी और शिवसेना यानी मिलिंद नार्वेकर जी, यस, इन तीनों की अलायंस हो गई जिसमें कांग्रेस को भूल गए। कांग्रेस मतलब कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस है ही नहीं। वो लोगों को क्या बोलेंगे, आप जवाब कैसे देंगे जी? आप दैट इज द प्रॉब्लम। व्हाट आर यू गोइंग टू टेल योर काडर, व्हाट आर यू गोइंग टू टेल द 20% वोट शेयर जो पूरे देश और दुनिया में है, पूरे दुनिया में देश में है, उसके लिए आपका क्या आंसर रहेगा? ही हिमसेल्फ डजंट हैव एन आंसर। ना क्रिकेट अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, ये who is going to believe this? और दूसरी बात क्या है? What is the ideology? आपका ideology? दूसरी बात क्या है? Second thing, as you said, he says we are not natural allies of the Shivsena. Yes. So how can we go to? That is what the Congress High Command. Because sir, these are the issues that is affecting. Maybe he's laying the groundwork. He's laying the groundwork. So that the Congress can fight the BMC elections बिल्कुल independently on its own. Yes. क्योंकि कांग्रेस का जो काडर है वो आज की तारीख में ये कह रहा है कि अगर बीएमसी यानी कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी अगर हम लोगों ने अलायंस कर दी तो हमारे वर्कर का क्या होगा, यानी उसको कभी भी चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया। आप देखो जो आज जब बाय इलेक्शन हो रहा है, मिसेस लटके इज फाइटिंग द इलेक्शन वेयर हस्बैंड इज डाइड, रमेश लटके, दे विथड्रॉन। यस, कांग्रेस, सुरेश शेट्टी, वन ऑफ द मोस्ट promising, rightfully speaking, yes, he should hard working Congress worker. He should have been standing for election. He should have been standing. So what he has to do is to support, and then in the process what happens? He'll not get a ticket from Sir, that particular. 1999 से लेकर के 2014 तक सुरेश शेट्टी साहब 3 बार चुनाव जीते हैं। Exactly sir. जो आदमी 3 बार चुनाव जीत चुका है उसको आपने कह दिया बैठ जाओ, क्योंकि अलायंस का है निर्णय। अब अलायंस है कहाँ पे? आपसे तो नहीं पूछा गया कि मिलिंद नार्वेकर जी और आशीष शेलार साहब जो हैं वो शरद पवार जी के साथ हैं। क्या कांग्रेस से पूछा गया आपका कोई कैंडिडेट है क्या एमसीए में? Exactly. कोई नहीं है, कोई नहीं है सर। दूसरे द कॉन्फ्लिक्टिंग थिंग्स दैट आर हैपनिंग, सामना के फ्रंट पेज पे मोदी जी का तस्वीर, मोदी जी के ऐड जी कि हम 14,000 लोगों को रोजगार देने वाले हैं जी, रोजगार मेला हुआ है आज। नाउ I can't understand if there's a Congress periodical or Congress weekly or Congress paper or bulletin, will it carry front page Modi's advertisement that I'm providing? Shivsena has. तो ये एक के बाद एक conflicting signals that is coming out from Shivsena and various allies, MV allies. The Congress doesn't have answers to anything. ये कब तक बोलेंगे एक क्रिकेट था, छोड़िए क्रिकेट में सब कुछ ठीक है, अब ये जॉब्स हैं। Our front page of Samna is carrying Modi's photograph and his own advertising saying that. So which means all the rumors that we talked about over here, that there is something brewing between Mr. Uddhav Thackeray and Mr. Devendra Fadnavis and perhaps the High Command in Delhi consisting of Mr. JP Nadda, Mr. Amit Shah and Mr. Narendra Modi. That means there is a conversation which is taking place. एक के बाद एक जो हो रहा है क्रिकेट से लेके मिलिंद नार्वेकर becomes MCA के ऑफिस
एरर हो जाता है। उसके बाद आप देखो फ्रंट पेज ऑफ सामना इज कैरिंग मोडीज एंटायर एडवर्टाइजमेंट सेइंग दैट हाउ ही इज टेकिंग महाराष्ट्र एंड प्रगति पथ, हाउ मेनी जॉब्स ही इज ऑफरिंग, हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज कमिंग इन महाराष्ट्र। सो व्हाट आर यू सेइंग? आप बोल रहे हो कि रोज आप बोल रहे हो कि यहाँ से फॉक्सकॉन चला गया, टाटा एयरबस चला गया, और आपके 50 खोके की सरकार, और फ्रंट पेज में मोदी की एड, और प्रगति पथ महाराष्ट्र को मैं ये दे रहा हूँ, महाराष्ट्र को ये दे रहा हूँ, ऑन द रोड टू डेवलपमेंट। कांग्रेस के पास क्या है? व्हाट आर दे डोंट नो वेयर दे आर। हम लोग क्या करें? इफ दे स्टिक विद दिस अलायंस फॉर मोर टाइम, कांग्रेस विल बी फिनिश्ड। द आइडेंटिटी इन मुंबई एंड महाराष्ट्र विल बी हो, बिकॉज उनके कार्यकर्ता को जवाब क्या देंगे? आज नाना पटोले का वही हालत है कि कार्यकर्ता जो मुझे रोज पूछ रहे हैं ये क्या चल रहा है, मैं जवाब क्या दूं? हाँ, हम एमवीए में है, बट एमवीए में क्या, आपका क्या रोल है? What are you doing in MBA? So is that the reason why our dear friend, the honorable and most respected Bhai Jagtap ji, is completely silent? He's not saying anything. They don't have answers to any of these questions. मिलिंद नार्वेकर, शरद पवार, आशीष शेलार एक ही मंच पर एक ही कार्यक्रम में लगातार बात करते, हाथ मिलाते हुए, गले मिलाते हुए एक ही पैनल में लड़ रहे हैं, और कांग्रेस इज लुकिंग। कांग्रेस के कार्यकर्ता पूछे क्या काय झालंय, आम्हाला माहित नाही, स्टैंडिंग आउटसाइड लुकिंग इन एज यूजुअल। सामना के फ्रंट पेज पे मोदी जी ने क्या क्या महाराष्ट्र के लिए कर रहा है। So the best way out for the Congress is to fight separately, and once they have the numbers or whatever, and then think of an alliance at that particular point of time. Let's be very clear. Now, the most pressing thing for the Congress right now would be how are they going to start their campaign or kick off their campaign in Gujarat? गुजरात में उनकी कैंपेन किस प्रकार शुरू होगी? क्योंकि अब तक गुजरात में कांग्रेस बिल्कुल साइलेंट मोड में है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ट्वीट आए हैं बाहर जी कि हमारा ये सब मुद्दे हैं। But that's the आम आदमी पार्टी ट्वीट, कॉपी पेस्ट फ्रॉम आम आदमी पार्टी जी, कि इलेक्ट्रिसिटी फ्री, पानी, बिजली, फिर स्कूल्स मॉडर्नाइजेशन, ये जो 10 पॉइंट है, 8 पॉइंट है मेन, इट इज आउट। तो कहने का मतलब ये हुआ Nothing. कि अरविंद केजरीवाल जी कल ये कहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना समर्थन देने के लिए। कहने का मतलब ये हुआ सर, अब तक जैसे केजरीवाल जी केजरीवाल और पूरे आम आदमी की टीम इज कैंपिंग आउट देयर, इज कैंपिंग इन गुजरात। एवरी एक वार्ड, एक डिस्ट्रिक्ट, एक असेंबली सेगमेंट्स में ऑलरेडी दौरा कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द जॉब, and here we in have every village of Gujarat, they are there, and they are there in the news. बीजेपी और वो लगातार रोज कुछ ना कुछ झगड़ा, हिंदुत्व पर झगड़ा, नोट्स पर झगड़ा, नोट पे लक्ष्मी जी के तस्वीर। हाँ, केजरीवाल जी ने हिंदुत्व एजेंडा एज वेल एज सोशल इश्यूज का एजेंडा जो है, एंड डेवलपमेंट, यस, इलेक्ट्रिसिटी, ये वो जो आम आदमी से संबंधित है, he has highlighted it. That's right. They have gone with a plan, and आपके कांग्रेस के जोड़ो यात्रा अब तक गुजरात पहुंचे नहीं है जी, और पहुंचेंगे भी। आई डोंट थिंक इस रूट में भी है, और कांग्रेस जाने जुड़ रही है आम आदमी पार्टी के साथ। सो कहने का मतलब ये हुआ प्रदीप जी, हो आपका कैंपेन ट्विटर में चालू हो गया, लेकिन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब हो सकता है, जरा मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से, इसका मतलब ये हो सकता है जब अरविंद केजरीवाल जी पहली मर्तबा मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेस के समर्थन से बने थे। कहीं ऐसा तो नहीं है एक बार फिर कांग्रेस समर्थन देगी आम आदमी पार्टी को गुजरात में? कोई बड़ी बात नहीं है। दैट विल बी द सेक्युलर पार्टीज एक साथ आएंगे और बीजेपी और कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन जी बाहर करेंगे। दैट सीम्स टू बी द ओनली ऑप्शन। अगर ऐसा हो जाए तो मैं तो जरा भी हैरान नहीं होऊंगा, मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड एट ऑल। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ऐसा कुछ अगर हो गया तो। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, टाइम सीनियर कांग्रेस लीडर्स आर सेइंग दैट केजरीवाल इज द बी टीम ऑफ द बीजेपी। ये बी टीम का एजेंडा चला रहा है, जैसे ओवैसी है वैसे केजरीवाल। लेकिन केजरीवाल जी ये बोलते हैं कि दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उनकी भाषा एक ही है। जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, दोनों आम आदमी पार्टी को एक ही भाषा में क्रिटिसाइज करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ। बीजेपी ऑल्सो नोज दैट कांग्रेस इज द ओनली एक्चुअल मेजर चैलेंज फॉर इट नेशनली। दैट्स राइट। Various states also, this is Congress is the only challenge. That's right. चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, जो आपने जितने भी गिनाए अभी तक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, yes, तो ये बीजेपी knows that they only challenge. Yes. But कांग्रेस ने अब तक कैंपेन ही शुरू नहीं किया गुजरात में। अब ऐसे क्या ये मैच फिक्सिंग है या जो भी हो, आप उम्मीद करते हैं yes.
उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस जो है और कांग्रेस के जो काडर हैं, कांग्रेस के जो काडर तो तैयार है, कांग्रेस कांग्रेस का जो नेता हैं कांग्रेस के, बहुत जल्दी अपनी कुंभकर्ण की नींद से उठेंगे। यस सर। लोगों को जागरूक करेंगे, जागृत करेंगे और लोगों को बोलेंगे वी आर बैक, हम लोग आ गए हैं, सड़क पर आइए, गुजरात में कांग्रेस के लिए लड़िए। मैं उम्मीद करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं, जैसे प्रदीप जी ने अभी कहा, उम्मीद करते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी बेंगलुरु से फ्लाइट पकड़ेंगे, गांधीनगर में लैंड करेंगे और वहां से अपनी भारत जोड़ो यात्रा जो है वो गुजरात में शुरू कर देंगे। Exactly. अगर वो ऐसा करते हैं बिल्कुल तो हो सकता है कि कांग्रेस वहां पे जागरूक हो जाए और जागरूक भी हो जाए। सर, हो सकता है आज के तारीख में राहुल गांधी जी के साथ जो पब्लिक जी देखने वाली जबरदस्त है, जबरदस्त मानना पड़ेगा, ये वो मानना पड़ेगा। तो आज भी अगर वो सेंसिबली करे, anything is possible. Anything is possible. But only thing, he has to change his map, as you said, and enter this particular terrain where the battle is going on. That's right. Absolutely, that's right. Because that's what happens in T20 cricket. If your best bowler is being hammered, you bring in a spinner, or you bring in somebody else. Yes. If you want to win the match. If you want. Of course, if you don't want to win the match, up to you. Right, that's just about it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. Nation Now में सिर्फ इतना ही। हम लोग मिलेंगे आपसे कल, और कल गुजरात में और क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, गुजरात में किस प्रकार राजनीति और गरमा रही है, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे और अंदर की खबर आपको ज़रूर बताएंगे। जाने के पहले एक रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को, वो जो बेल आइकन है उसके ऊपर ज़रा दबाइए, बटन दबाइए उस पर, इफ़ यू लाइक द चैनल दैट इज़, और कीप वॉचिंग नेशन नाउ। आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम।